Hello students, how are you? Fine, very good. So पढ़ाई लिखाई करते रहे, खाना पीना खाते रहे और कंबल ओढ़ करके सोते रहे, right? Okay. So this is part 2 video of the chapter number 2, that is polynomials, right? So all the basic concepts we have studied in the last part. So now we have come with the different questions of this chapter that we have to solve here. Okay. So relationship, zeros, coefficient, constants, these all things we have done in the last part. Okay. So in this video just I'll give you the concept how to divide one polynomial by another polynomial. Clear? So divide the first polynomial by the second polynomial. Before that just I am giving you an example like that. जब तुम क्लास 1 में और 2 में पढ़ते थे तो क्या करते थे? तो ऐसा कुछ करते थे क्या? So 2 2s are 4. So this is quotient and this is remainder. तो ऐसा कुछ करते थे क्या कि 5 is equal to this into this plus 1. Same concept we have brought here, that if our polynomial is px, if our polynomial is px is equal to gx, this is divisor, into quotient qx plus remainder rx. Clear? Plus remainder rx. P is the polynomial, this one. P is the dividend. Gx is the divisor. Qx is the quotient and Rx is the remainder. Clear? So dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. So this concept will apply for some questions. Note it. नोट करें बच्चों, नोट कर लिए? ओके. So our topic is divide and verify. Divide and verify. But I'll divide, you have to verify by own. So question is divide and verify. Divide and verify. This is topic. So question is divide 3x cube plus x square plus 2x plus 5 by 1 plus 2x plus x square. 1 plus 2x plus x square. Clear? 1 plus 2x plus x square. So our first step is that सबसे पहले इसमें क्या देखना है? This must be in arranged form. इसको arranged form में होना बहुत जरूरी है. तो क्या ये arranged form में है? Yes. अरेंज फॉर्म में है. या अरेंज फॉर्म में है क्या है, बट
अपोजिट है, बट इसको हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे, दैट मीन्स उसको अरेंज करेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फर्स्ट स्टेप टू अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल। सेकेंड, इस डिवाइड करने का रूल क्या है, देखो पहला रूल, फर्स्ट रूल क्या है कि सिर्फ इसका फर्स्ट टर्म और सिर्फ इसका फर्स्ट टर्म को देखना है और किसी को नहीं देखना है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को देखना है। ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो इसका फर्स्ट टर्म में कौन सा ऐसा टर्म से मल्टीप्लाई करें कि इसका फर्स्ट टर्म के इक्वल आ जाए, इसमें कौन सा टर्म से मल्टीप्लाई करें कि इसका फर्स्ट टर्म आ जाए। सो हियर इज 3 बट हियर इज नॉट 3, सो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई विथ 3, here is cube, here is square, if you put here x, then if you multiply by 3x into this, it will become 3x cube, but after that you have to multiply by this into these all terms and write down in front of respective terms. So 3x into x square, that is equal to 3x cube, 3x into 2x, that is equal to 6x square, 3x into 1 plus, that is 3x. Clear? Now put the opposite sign of this, इसका अपोजिट साइन पुट करना है। अगर ये दोनों है, अगर ये दोनों ऐसा दोनों मिल रहा है तो अपोजिट साइन, अगर ऐसा दोनों मिलेगा नहीं तो उसमें अपोजिट, जैसे यहाँ पे कोई टर्म नहीं मिल रहा है तो इसमें अपोजिट नहीं लगाना है, नीचे वाला में लगाना है जो मिल रहा है ऊपर से। तो ये मिल रहा है, इसमें अपोजिट साइन, ये मिल रहा है opposite sign, ये मिल रहा है opposite sign, so this will be cancel out. So now you treat the sign of what we have given. So this is plus 1, this is minus 5, so plus 1 minus 5 minus 6, this is minus 5x square, plus 1x square minus 6x square minus 5x square plus 2x minus 3x, that is minus x, and now you retain it plus 5. Clear? Now again just you see the first term of this and this, by which term you have to multiply in this for getting this. Here is minus, here is not minus, then you put here minus, here is x square, here is x square, okay, but here is 5, here is not 5, तो यहाँ पे 5 से सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। So this 5 से अब सारा टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा, so minus 5 into x square minus 5x square minus 5 into plus 2x, that is minus 5 2s are 10x, minus 5 into plus 1 minus 5. So now you change the sign, so this is plus, this is plus, this is plus, so this will be cancelled out. This is minus 1x plus 10x, that is 9x, plus 5 plus 5, this is plus 10. Now just we are looking here that this term, that is remainder, this term, if I am not telling it remainder, then this term is less than this term, or this term is smaller than divisor. That means after that we will not divide it, we will say that this is our remainder. Understood? This is our remainder. Why? Because this is smaller than this. So hence quotient is equal to 3x minus 5, remainder is equal to 9x plus 10. Clear? Now verification. So for verification, but we have written the formula px. If this is px is equal to gx. Px is equal to gx into qx plus rx. This is remainder. Clear? Rx, qx, px, and this is gx. So you can check whether it is correct or not. So note it. Okay.
So divide, next question is that okay, so divide, write down, divide 3x square minus x cube minus 3x plus 5 by x minus 1 x minus 1 minus x square. Clear? This is our polynomial. So first of all we have to check which term is greater than, if it is not given this divided by this, then first we check which one is greater. So this is greater than this term is greater than this polynomial is greater than this polynomial. So first we clear that by which we have to divide the second polynomial. Clear? Second step, check whether it is arranged or not. Is it arranged? 2, 3 like that. Not arranged, no? This is not also arranged. So now after arranging you will write here minus x square, this one, plus x minus 1. This is in arranged form. Now this one minus x cube, then plus 3x square minus 3x plus 5. Clear? So same process, you check for this. फर्स्ट टर्म को देखना है और इसमें कौन सा ऐसा नंबर से टर्म से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट कर दे. तो यहाँ दोनों जगह माइनस है तो यहाँ पे माइनस देने की जरूरत नहीं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब लाने के लिए यहाँ पे एक्स इंटू कर दो. नाउ अब ये एक्स से सारे टर्म को इंटू करेंगे. सो एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स क्यूब. एक्स इंटू प्लस एक्स, दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर. x into minus 1, that is minus x. Now अब देख रहे हैं ऐसा सामने है टर्म्स मिल रहा है तो उसका अपोजिट लगाएंगे. इसका अपोजिट प्लस, इसका अपोजिट माइनस, इसका अपोजिट प्लस. सो दिस विल बी कैंसिल आउट. फर्स्ट टर्म को कैंसिल होना ही होगा. नाउ 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 मैंगो माइनस 1 मैंगो, अरे 3 मैंगो माइनस 1 मैंगो, 2 मैंगो, माइनस 3x प्लस x, माइनस 3 एप्पल प्लस 1 एप्पल, that is equal to minus 2 apple. Now you retain the left term, that is fine. So again just you check for the first term. Here is plus, here is minus. Okay. For getting plus, you have to multiply with minus sign, then minus and then minus plus it will come. Here is x square, not changing. Here is 2, here is not 2, so you put here 2 only. So by 2 you multiply in these all terms, so it will get, so minus minus plus 2x square minus 2 plus this is minus 2x plus minus minus plus 2, so this is minus, this is plus, this is minus. So this will be cancel out. Obviously this is minus, this is plus, opposite sign cancel out. So this is plus 5 minus 2, this is 3. Clear? So this is remainder, this is quotient. Note it, this is quotient, therefore quotient is equal to x minus 2, remainder equal to 3. Clear? Note करें, note करें. Okay. One more question we have. One more question we have. Divide px equal to, divide px is equal to 2x to the power 4, 2x to the power 4
माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बाई gx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। चलो px को डिवाइड करना है gx से। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी दिया रहता है, डिवाइड फर्स्ट पोलिनोमियल बाय सेकेंड पोलिनोमियल, ऐसा भी रहेगा, यानी कि इसको डिवाइड करना है इससे। या कभी कभी क्वेश्चंस में घुमा करके दे देता है, कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है डिवाइड, और इसको लिखता है एंड देन कॉमा दिस या दिस कॉमा दिस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि किस टर्म को किस टर्म से डिवाइड करना है। क्लियर? तो फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो बड़ा टर्म है उसको डिवाइड करते हैं छोटा टर्म से, बस और कुछ नहीं। जो बड़ा टर्म है उसको डिवाइड करते हैं छोटा टर्म से। ये तो पहचान में आता है बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये छोटा टर्म है क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और इसमें पावर 4 है, तो ये डेफिनेटली ये बड़ा टर्म है। क्लियर है? तो छोटा टर्म से बड़ा टर्म को डिवाइड करो। सो एक्स स्क्वायर अरेंज है, यस अरेंज है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। राइट? नाउ okay match the first term. Here is x square, here is x to the power 4 not come, here is 2, yes, तो 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ऐसा आ जाएगा क्या? डेफिनेटली आएगा। सो दिस विल कम 2x to the power 4. Now you have to multiply with this into all terms. So 2x square into minus 2, this is minus plus minus minus 2 2 जा 4, x स्क्वायर आना है ना, लेकिन स्क्वायर वाला के टर्म के सामने लिखना है। सो प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 x स्क्वायर सामने लिखना है जो टर्म आ रहा है। नाउ इसको चेंज करेंगे अपोजिट, इसका अपोजिट। क्लियर है? अब इसको कैंसिल और जो टर्म है उसको रिटेन करेंगे, जो बाकी टर्म है। सो दिस इज माइनस 3x क्यूब एंड दिस इज प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। 4 में से एक गया, 4 में से एक गया तो बाकी कितना? वाह, वेरी नाइस। सो दिस इज प्लस 6x माइनस 2। नाउ चेक यू अगेन इट द फर्स्ट टर्म, दिस इज माइनस, here is plus, so you multiply with minus. Here is 3, here is not 3, then you multiply with 3. Here is x square, here is x cube, then you multiply with x. अब ये 3x से पूरा टर्म्स को इसमें मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 3x क्यूब माइनस 3x इंटू माइनस 2, दिस इज माइनस माइनस प्लस 6x, x वाला टर्म के सामने लिखना है, यस, प्लस 6x। ओके, अपोजिट साइन इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे, ये टर्म आया है डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, अगेन दिस विल बी कैंसिल आउट, सो वी हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर? फॉर गेटिंग एक्स स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, सो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। क्लियर है? क्लियर है? ओके, नोट करें, नोट करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम और कैसे लिख सकते थे? तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे लिख सकते थे। चेक वेदर द सेकेंड टर्म इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म, छोटा वाला जो टर्म है बड़ा वाला का टर्म है, वो चेक करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए
राजस्थान से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और केरल एंड तमिलनाडु से लेकर के जम्मू कश्मीर तक पैदल नहीं चलना होगा, सेम प्रोसेस में डिवाइड करना होगा. इफ यू आर गेटिंग द रिमाइंडर जीरो, दैट मीन्स द स्मॉलर वन और द सेकेंड टर्म और द gx टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट टर्म. क्लियर है? जब ऐसा चेक करने आएगा तो सिंपल डिवाइड करना है, जैसे हम लोग कर रहे थे जो मेथड से. अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो या ये इसका या तो मल्टीपल होगा या इसका ये फैक्टर होगा, या तो मल्टीपल होगा या तो फैक्टर होगा. कब? तब जब रिमाइंडर जीरो आएगा. क्लियर है? गुड. ओके. Okay. Now we are having a different question. अब तक का सबसे अलग क्वेश्चन अब मिलने जा रहा है. क्वेश्चन है obtain all other zeros of the polynomial obtain all other zeros of the polynomial 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. वेरी गुड क्वेश्चन. ये एग्जाम में आता ही आता है, 100% आता है कि जब एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और उसका दो जीरोस ऑलरेडी दिया हुआ है, यू हैव टू फाइंड अदर टू और अदर मोर जीरोस अदर देन दिस. इसके सिवा कोई और जीरोस है उसको आप निकालिए. तो इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मेट देते हैं, एक प्लेटफॉर्म में लाते हैं और एक प्लेटफॉर्म में लाने के बाद इसको ट्रेन पे लोड कर देंगे और फिर अपने जगह पे चला जाएगा. ठीक है ना? गुड. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि if root 5 by 3 and minus root 5 by 3 are zeros, अगर ये जीरोस है तो कहीं न कहीं देन x, अगर ये प्लस है तो कहीं न कहीं x माइनस रूट 5 बाई 3 ऐसा रहा होगा, इक्वल टू 0 रहा होगा, तब तो दिस इक्वल टू प्लस आया वैल्यू, एंड x प्लस रूट 5 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0 ऐसा रहा होगा. याद करो उस लम्हे को जिस समय मैं बताया था कि फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल
फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल एंड फाइंड द जीरोस। तो अगर ये इसका जीरोस है तो कहीं ना कहीं ये ऐसा रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, अब रूट का स्क्वायर क्या होता है? रूट का स्क्वायर क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर रूट हट जाता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। अब क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से जो गिवन पोलिनोमियल है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, अब इसको डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x4 है, तो 3x टू द पावर 2 रखना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x टू द पावर 4, and this into this will give you 3 cancel, this is 5 minus 5, यहाँ पे रखेंगे माइनस 5x स्क्वायर, चलो माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट, सो यहाँ पे रिटेन 6x क्यूब, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, दिस इज प्लस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे लाना है 6x क्यूब, तो मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 6x से, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x क्यूब, दिस इंटू दिस, 3 2 जा 6 कटेगा, 5 2 जा 10, दैट इज माइनस 10x माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10x। अब देखो यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा प्लस 3 से, तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, so this is minus, this is plus, this will cancel out, so we have 0। क्लियर है? अब देखो ध्यान से कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आया है, दिस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो इसका 2 जीरोस निकलेगा क्या? डेफिनेटली निकलेगा, हेंस अदर 2 जीरोस आर दिस, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। चलो 3 3 जा 9 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आना चाहिए। सो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू 3x इज कॉमन, सो दिस इज 3x प्लस 1, 3 इज कॉमन, x प्लस 1, चलो सो 3x प्लस 1 एंड x प्लस 1, 4 जीरोस, इसके बाद इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो 4 जीरोस क्या है? 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1/3, पहला जीरोस निकल गया, और दूसरा जीरोस x प्लस 1 इक्वल टू 0, सेक इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? सो अदर देन 2 जीरोस is hence 2 zeros are minus 1/3 and 1। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे कंसेप्ट्स को मैंने इस चैप्टर में बता दिया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो अप्लाई दिस ऑल कंसेप्ट्स इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Be continue with your chapters polynomial with different books, solve different types of question. All the very best.